Hi everyone, welcome in Strength and Stretch YouTube channel. So today we are going to discuss about osteoarthritis, right? So what is osteo? Osteo means bone, earth means arthron yani joint, and itis means inflammation. Wherever itis comes, it means inflammation. So osteoarthritis is a disease involving inflammation in bone and joint cartilage. Okay, there used to be a misnomer that inflammation does not play a role in its development and that it was mostly degenerative disease resulting from simple wear and tear. But nowadays, inflammation does play a very important role in development of osteoarthritis. Okay, osteoarthritis may mainly occur in synovial joints. So we have several varieties of synovial joints. Okay, so but it mainly occurs in hip, knee, and ankle joint. Like osteoarthritis occurs in synovial joints. So now we will see the structure of a synovial joint. So there are two bones here, right? So what is this? This is joint capsule. This is synovium. This area is synovium, and both the bones have their own articular cartilage. So articular cartilage act as a cushion, or it is a connective tissue which allow two bones together to glide against each other, right, without friction. So together synovium plus articular cartilage makes the inner lining of joint space. Okay, along with the articular cartilage there is another component of synovial joint is synovium. Okay, as I have already told you about this, synovium and articular cartilage forms the inner lining of the joint space. Now, synovium is composed of loose connective tissues and blood vessels and lymphatic vessels. So we will see the structure of synovium now. So now here you can see that these red color are the blood vessels and these green color are the lymphatic vessels. And synovium has some type of cells also. For example, type A cells and type B cells. Type A cells are there which clears at cellular debris. Debris we know any kind of waste material. And type B that produces the component of synovial fluid. It helps in the lubrication of two articular surfaces. You can see here these surfaces are making joint, and this black area is articular cartilage. Okay, so synovial fluid basically lubricates the surfaces so that easily gliding हो सके bones का. Now what is happening in osteoarthritis? In osteoarthritis, there is a progressive loss of articular cartilage, okay, which means now two bones are not separating anymore due to the cartilage loss, which generates friction and causes inflammation and triggers pain. So osteoarthritis में basically यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो articular cartilage है इसका प्रोग्रेसिव धीरे धीरे लॉस होता जा रहा है. ठीक है, देयर आर सम फैक्टर्स जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट वी विल नॉट सी दैट हियर नाउ. तो प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज की वजह से क्या जनरेट होगा? फ्रिक्शन जनरेट होगा, बिकॉज टू बोन्स आर ग्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर विद फ्रिक्शन नाउ, बिकॉज आर्टिकुलर कार्टिलेज इज नॉट हेयर एनी मोर, एंड दैट कॉजेज इन्फ्लामेशन. एंड इन्फ्लामेशन की वजह से हमें पेन ट्रिगर होगा, जो हमारा पेन है वो हमें होने लगेगा, बिकॉज देयर आर सम नर्व एंडिंग प्रेजेंट इन द जॉइंट स्पेस ऑल्सो. तो नर्व एंडिंग ऑब्वियसली बात है, नर्व्स कैरी सेंसेशंस, तो उनकी वजह से हमें पेन होगा. ओके, नाउ आर्टिकुलर कार्टिलेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन एनी जॉइंट. ओके, सो आर्टिकुलर कार्टिलेज को जो बनाते हैं या एनीथिंग मेंटेनेंस जो उनकी करते हैं वो सेल्स होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स. So what are chondrocytes? Chondrocytes are specialized cell which maintains everything related to a healthy articular cartilage. Okay, so chondrocyte produces and are embedded within a strong gel or extracellular matrix, ठीक है, which contains type 2 collagen, which is a protein. As we all know, type 2 collagen is a protein that provides a structural support to the articular cartilage, right? And proteoglycans. So there are two things present in the extracellular matrix, which are type 2 collagen and proteoglycans. The proteoglycans क्या होते हैं? They are aggregates of a protein and sugar molecule. जैसे कि proteoglycans के example hyaluronic acid, chondroitin sulfate and keratin sulfate. Okay. Now together you can see here, this is the extracellular matrix. Okay, these are proteoglycans and these are type 2 collagen. So as you can see here, type 2 collagen and proteoglycans together, they provide articular cartilage. They provide articular cartilage that elasticity and high tensile strength, which is very important for weight bearing joints, right? All this provides elasticity and high tensile strength to this articular cartilage, which helps weight bearing joints to distribute weight so that the underlying bones absorb the shock and weight. An example of weight bearing joints are knee, hips and lower lumbar spine, right? You can see here, in a healthy person, chondrocytes maintain a delicate balance between catabolic activity and anabolic activity. So what do you mean by catabolic and anabolic? Catabolic activity means the breaking down of old cartilage as the aging process
person is getting aged. And anabolic activity means producing new cartilage, right? So these both activities are done with the help of degradative enzyme. Degradative enzymes क्या करते हैं, वो basically catabolic activity को करते हैं, it means breaking down of cartilage. And anabolic activity को करने के लिए या producing new cartilage के लिए we have synthetic enzymes, right? So when something causes an increase in the activity of डिग्रेडेटिव एंजाइम्स, सो उसकी वजह से हमारी कैटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, राइट, ड्यू टू विच कार्टिलेज का लॉस होने लगता है. कैसे लॉस होगा? प्रोटियोग्लाइकेंस का लॉस हो रहा है और कोलेजन का, जो कि दोनों ही हमारे मिलकर के आर्टिकुलर कार्टिलेज को टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट आर दीज रिस्क फैक्टर जो कि इस एनाबॉलिक एक्टिविटी और कैटाबॉलिक एक्टिविटी को अल्टर करते हैं? ठीक है, रिस्क फैक्टर्स में एज है. एज के वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमनली देखा जाता है. ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टू टाइप का ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, वी ऑल नो. एंड सेकेंड इज इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन में देयर आर साइटोकाइंस जो कि इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, जैसे कि इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर. ओके, इनमें से कुछ जो साइटोकाइंस हैं हमारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, वो इन्वॉल्व होते हैं ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओल्ड कार्टिलेज विच इज नोन एज कैटाबॉलिक एक्टिविटी. और कुछ क्या करते हैं, एनाबॉलिक एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं, इट मीन्स न्यू कार्टिलेज की फॉर्मेशन को ब्लॉक करते हैं, राइट. सो थर्ड इज जॉइंट इंजरी. अगर जॉइंट इंजरी है विच अल्टीमेटली ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ इन्फ्लामेशन टुगेदर विद इटसेल्फ, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस हैं. सेकंड इज मैकेनिकल स्ट्रेस इन ओबेसिटी, फोर्थ इज मैकेनिकल स्ट्रेस इन ओबेसिटी. तो बेसिकली इसके अंदर क्या हो रहा है, जब वेट बियरिंग जॉइंट्स है, वेट बियरिंग जॉइंट्स पे अगर ओवर प्रेशर पड़ेगा, ओवर वेट बियरिंग हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है आर्टिकुलर कार्टिलेज ब्रेक डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही हैं, उनके लॉस होने का. And other causes can be neurological disorders, genetic and medications. ठीक है, so whatever is the cause of damage of articular cartilage, initially chondrocytes यानी cartilage producing जो cells होते हैं वो ट्राई करते हैं कि ये ठीक हो जाए प्रोसेस. तो उसके लिए they started making type 2 collagen more than the proteoglycans. Why they do that? Because type 2 collagen, as I have already told you about, कि वो structural support provide करता है. So पहले अगर structure हमारे पास अच्छा होगा articular cartilage का, then we need the elasticity and tensile strength, right? So इसलिए वो type 2 collagen को ज़्यादा बनाते हैं. बट अल्टीमेटली एज द इन्फ्लामेशन अकर्स, उनकी जो वर्किंग प्रोसेस है, उनकी वर्किंग पावर है, वो थोड़ी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे एक डिफरेंट टाइप ऑफ कोलेजन बनाने लगते हैं, विच इज़ टाइप 1 कोलेजन. यू कैन सी इट हेयर, विच इज़ टाइप 1 कोलेजन. अब टाइप 1 कोलेजन उस तरीके से वर्क नहीं कर पाता प्रोटियोग्लाइकेंस के साथ जैसे कि वो टाइप 2 कोलेजन के साथ कर पा रहा था. इस वजह से क्या होता है, धीरे धीरे आर्टिकुलर कार्टिलेज का फॉर्मेशन जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है और कॉन्ड्रोसाइट्स जो चले जाते हैं वो किसमें, एपोप्टोसिस में चले जाते हैं, विच इज़ नोन एज प्रोग्राम सेल डेथ और प्लांट सेल डेथ. ओके, अब जब कॉन्ड्रोसाइट्स भी नहीं कुछ काम कर रहे हैं, उनका जो काम है, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, कार्टिलेज इज गेटिंग वीकर, सॉफ्टर एंड कंटिन्यूज टू लूज इट्स इलास्टिसिटी. और धीरे धीरे वो स्टार्ट कर देता है फ्लेक ऑफ होना जॉइंट स्पेस में. फ्लेक ऑफ मतलब है कि वो थोड़ा थोड़ा टूटने लगता है, विच इज नॉन एज जॉइंट माइस. ठीक है, डेब्रिस जिसे हम कहेंगे वो जॉइंट माइस भी कहलाया जाता है. अब आई हैव टोल्ड यू अबाउट कि साइनोवियम हैज 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, राइट, टाइप ए सेल्स एंड टाइप बी सेल्स. तो टाइप ए सेल्स का काम था डेब्रिस को रिमूव करना, तो उसको रिमूव करने के लिए वो इन्फ्लामेटरी जो हमारे सेल्स होते हैं, लाइक हमारे इम्यून सेल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, वो उनका रिक्रूटमेंट करते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन में. ठीक है, जैसे ही वो सेल्स वहाँ पे आते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं हमारे साइटोकाइंस को रिलीज करना, जो कि इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से अब साइनोवाइटिस हो जाता है हमें. साइनोवाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन, क्योंकि क्या हो रहा है वहाँ पे साइटोकाइंस रिलीज करे हैं, किसने रिलीज करे, लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस ने. ठीक है, सो यू कैन सी इट हेयर, दिस इज फिब्रिलेशन, यानी ये जो हमारे क्रैक्स और क्लेफ्ट्स हैं, ये फिब्रिलेशन इन्हें हम कहते हैं. दीज आर स्मॉल पार्ट्स ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज जो कि स्टार्ट कर दिया फ्लेक ऑफ होना जॉइंट स्पेस में. दिस इज जॉइंट स्पेस, दिस इज साइनोवियल मेम्ब्रेन जिसके पास 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं. आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस. दीज आर लिम्फोसाइट्स एंड दीज आर मैक्रोफेजेस. ओके, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, एज द आर्टिकुलर कार्टिलेज कंटिन्यूज टू लॉस इट्स इलास्टिसिटी एंड यू नो इट्स स्ट्रक्चर, सो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसके लॉस की वजह से बोन जो होते हैं एक दूसरे के साथ रब करना शुरू कर देती हैं, विच इज नोन एज बोन इबर्नेशन, राइट. और इसमें क्या हो रहा है, फ्रॉम द एजेस बोन ग्रोज आउटवर्ड्स. जब बोन एक दूसरे के साथ रब करेंगी तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे बोन रब होने की वजह से बोन की ग्रोथ जो है वो आउटवर्ड हो रही है, लाइक दिस. ओके, लाइक यू कैन सी इट हेयर, लाइक दिस, इस तरह से ग्रोथ हो रही है ऐसे अपवर्डली, और जिसकी वजह से कुछ ग्रोथ को, स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं. ये आप कॉमनली देखेंगे एक एक्सरे के अंदर, ऑस्टियोफाइट्स वगैरह इन ऑस्टियोआर्थराइटिक पेशेंट. ओके, सो नाउ ये जो आप देख सकते हैं हमारे जो लाइक
ऑस्टियोफाइट्स कॉमनली कैन बी सीन इन डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स, फिंगर जॉइंट्स के अंदर। अगर हमारे डिस्टल जॉइंट में आप देख रहे हैं, फिंगर के यानी डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट में आप देख रहे हैं डीआईपी में, तो हिबर्डिन नोड्स मुझे कहते हैं। और अगर पीआईपी में आप देख रहे हैं यानी प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट, तो हम उसे कहेंगे बुशार्ड नोड्स। ओके राइट। ऑस्टियोआर्थराइटिस, अब देयर आर सम कॉमन सिम्टम जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में स्टिफनेस होगी ऑस्टियोआर्थराइटिस में, और एंड ऑफ द डे में फिर से होगी, और मॉर्निंग में स्टिफनेस रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी होगी। साथ में पेन होगा, पेन शार्प एक भी हो सकता है और डल एक भी हो सकता है। ठीक है, अगर पेशेंट बोलता है आपको कि मुझे बहुत ही शार्प पेन हो रहा है सिटिंग पोजीशन में मेरे को बहुत शार्प पेन होता है, बट वो बोलेगा कि जब वो चलता है या वॉकिंग करता है तब उसका वो पेन धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये बताएगा आपको पेशेंट। बर्निंग काइंड ऑफ सेंसेशन भी होगी, वर्स होगा अगर पेशेंट कंटिन्यूसली कोई एक्टिविटी कर रहा है तो वो पेन वर्स भी हो सकता है। यूजुअली देयर इज नो स्वेलिंग और माइल्ड स्वेलिंग कैन बी सीन द ऑस्टियोआर्थराइटिक पेशेंट, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पेनफुल स्वेलिंग होती है। ओके, दिस इज द some kind of general. Now treatment of osteoarthritis में basically it's not a completely curable disease, okay, but we can prevent it. So नॉन फार्मेकोलॉजिकल अप्रोच के यहाँ पे मतलब है कि जिसमें मेडिसिन यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो पेशेंट को हम वेट लूज करने के लिए बोल सकते हैं, एक्सरसाइज के लिए कह सकते हैं, एंड फिजिकल थेरेपी कैन बी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस एज वेल। फार्मेकोलॉजिकल अप्रोच में दैट फोकस ऑन रिड्यूसिंग द पेन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द पेशेंट और जॉइंट। सो सेकेंड इज फार्मेकोलॉजिकल अप्रोच में ही हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन दिए जा सकते हैं। आई हैव टोल्ड यू अबाउट प्रोटियोग्लाइकेंस, राइट। तो हाइलुरोनिक एसिड भी एक प्रोटियोग्लाइकिन है, और साथ में हम कॉन्ड्राइटिन सल्फेट एंड केराटिन सल्फेट के इंजेक्शन भी पेशेंट को दे सकते हैं, नॉट मोर देन 3। एंड सर्जरी कैन बी डन इफ द पेशेंट की कंडीशन को बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई, तो सर्जरी यानी जॉइंट रिप्लेसमेंट कैन बी डन। सो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट what can you advise? Physiotherapist, we can give some advices to the patient to avoid such things like squatting on the ground, using Indian toilets, unnecessary bending, standing and walking, jogging and long walks, kneeling, unsupported climbing and getting up, carrying heavy weights, unarmed chairs. Depression and anxiety should be avoided in the case of osteoarthritis of knee, right? So I hope ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा. So if you like this video, so please give it a thumbs up and subscribe this channel. You can find those notes on our page also, which is Strength and Stretch. I will leave the link in the description box. So please, if you like this video, so give it a thumbs up and subscribe this channel. And thank you for watching this video. Bye bye. We will meet in the next video.